Okay, so now next assignment is the result section, discussion sections, and conclusion section. For that, I will just open one of the published papers so that you will get an idea. Go to my website, go to publications, and look for a paper on smart shoes. I will just do Control F and look for smart word. Okay. So, walking pattern analysis using smart shoes. So, you have to click manuscript available at, not the DOI link, and you should see the paper as a reference paper for your work. Now, first thing is you have already finished writing the title. You have put your names as the authors and your faculty advisor name in the last. Then you have written already the abstract. You might or might not have written five keywords about your paper. Then you have already written an introduction section. This section basically covers what is your paper about, what are the existing technologies, and how you will improve on it. And then in last paragraph you tell about your project. Then you have to create a bio profile for each student, one paragraph about yourself. So if I want you to be getting introduced in front of a thousands of people, what I will say about you, that is what we call the bio paragraph about you. So you can say currently pursuing BTech in electronics and computer engineering in KJSUMA and so on. So that is how the one paragraph, your all achievements, previous achievements, which somebody will introduce you with, you have to write it. Okay. And as a third person, so Dr. Ninad Mehendale did this, वगैरह. I did this नहीं लिखना है. ठीक है. So once you put that, always put corresponding author as your guide. So in this case, this was the paper by my student. So you have to put last name as the teacher's name. Then you have already finished the block diagram. You have given the caption to it. Now each figure in the paper that you have written should have a caption and a explanation. Now what do you mean by caption and what is the explanation? If you see a panda in the figure, so there will be a picture of a panda. Let me just check if there is. Okay. So if you show this as a picture in your research paper, below this picture, what you will write is panda eating some momos. That will be the caption. And then what will be the explanation? Figure one shows a white panda with a black background or whatever. Stretch his leg, eating the momos in two hands, where out of eight momos, only one momo he could pick up, and he is under stress. That goes as a one paragraph explanation. So those who cannot see the figure will read this explanation, that is also called as alt text, and will get the entire imagination of this picture. ठीक है. So that is the difference between caption and a figure and a explanation. तो एक चीज हम गधे जैसे तीन बार बताते हैं पेपर में. एक तो फोटो में दिखता है, उसके नीचे कैप्शन में लिखता है, और फिर एक्सप्लेनेशन में बोला जाता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सप्लेनेशन उधर ही हो फिगर के नीचे, लेकिन कैप्शन फिगर के नीचे ही होता है. एक्सप्लेनेशन कहीं भी होगा, वो फिगर नंबर वन शोज दैट करके होता है. सो लेट मी गो बैक टू द पेपर. So each figure you have already made a concept diagram. That will be your figure one. After that, you have already written a literature review with at least 10 citations, I guess. So this is what you call citation. You have a rectangular bracket in which you have a number, and if you click on that number, it will take you to the bibliography of the paper where that number will be. ठीक है. तो ये 15 नंबर का पेपर यहाँ पे देख सकते हो, सेम पेपर होगा एट टू एंड. So that is how you should cite the references. IEEE style you have to follow. So once you complete the literature review, you have already talked about methodology, where you described what hardware you use, what software you use, how you fabricated this entire stuff. Then you give your schematic diagram, circuit diagram, PCB layout as part A, B, C in the same figure. Then you have already made the model. So internals of the model, exploded view, your actual PCB's photo with naming, and then you have your
photos. That will be the one of the figures in the result. This figure of circuit diagram will go into the methodology section. Then you have your algorithm flow chart. You have already drawn it. If not, draw it. Then each figure again need a caption and explanation. Then your results. Now many of you during your project you figure out that no results can be computed for the particular project. इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप इतना डिटेल में स्टडी नहीं किए उस प्रोजेक्ट को, या फिर आपने एकदम ही फुद्दू सा प्रोजेक्ट ले लिया जिसमें आप बटन दबाने पे एलईडी ग्लो करा रहे हो, और उसमें भी बटन कितनी तेज दबा सकते हैं, उसके बाद कितने डिले बाद एलईडी ग्लो हो सकता है, एलईडी कितने इंटेंसिटी तक ग्लो होता है, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एलईडी की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती है कि नहीं, इस तरह से रिजल्ट आप किसी भी चीज़ के प्लॉट कर सकते हो. इनफैक्ट मेरे हेयर ग्रोथ का टाइम डिपेंडेंट प्लॉट भी मैं कर सकता हूँ कि मेरी ग्रोथ कितनी हो रही है हेयर की. सो दैट इज हाउ यू कैन स्टडी ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू से. दिस फाइल, इस फाइल की क्या स्टडी करूँगी, इसकी ग्रीननेस कितनी चेंज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट आई कैन प्लॉट. सो ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट यू मेड. अभी ये चश्मा है, स्मार्ट चश्मा, तो इसमें कितने डिस्टेंस पे आने पे वो एग्जैक्टली बज रहा है, कितने देर बाद बज रहा है, या फिर ये क्या है, रडार है, नहीं ये नहीं पूछा रहे, ठीक है, ये एक्सीलरोमीटर है, तो एक्सीलरोमीटर का मिनिमम डेविएशन कितना सेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसके प्लॉट में आएंगी. सो यू हैव टू नाउ रिमेंबर दिस डायग्राम इज व्हाट वी कॉल्ड अ फ्लो चार्ट, और जो ऊपर था वो ब्लॉक डायग्राम टाइप था, ठीक है, इसको हम डेटा फ्लो ग्राफ भी बोलते हैं, डीएफडी. देन रिजल्ट्स. अब रिजल्ट्स कैसे है, आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है उसके जो प्लॉट्स आए हैं, उसके जो फोटोज आए हैं, उसको डिस्क्राइब करना विल बी द रिजल्ट सेक्शन. फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट की मैच हुई और बांग्लादेश उसमें जीत गया, तो रिजल्ट ऑफ द मैच क्या है, बांग्लादेश उसमें जीत गया, ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन आपको लिखना है डिस्कशंस. अब रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस कंबाइंड लिखा है तो ये दो मर्ज हो गए हैं. अगर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेपरेटली लिखते तो डिस्कशंस मतलब बांग्लादेश क्यों जीता. जो पोस्ट मैच एनालिसिस रहता है ना, वो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, वो एक्चुअली डिस्कशन है, वो रिजल्ट नहीं है. तो उसमें लिमिटेशन क्या थे, आगे चल के बांग्लादेश की टीम कैसे स्ट्रांग बनेगी, ये सारा जो है ये चीज़ डिस्कशन में आएगा. कि मेरे पास 300 रुपये थे इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड यूज़ किया, 6,000 होते तो मैं लाइडार यूज़ करता, करेक्ट. ये सब चीज़ें डिस्कशन में जाएंगी. डिस्कशन में सारे फेल पीसीबीज दिखा सकते हो, तुम्हारे सारे फेल्ड अटेम्प्ट बता सकते हो, कितनी बार सोल्डरिंग खराब किया, कैसे खराब किया, ड्राई सोल्डर किया, सब फोटो दिखा सकते हो. तो डिस्कशन एकदम बकवास चीज़ है जो कोई भी नहीं सुनना चाहता, वो सब जाती है डिस्कशंस में, जो एक्चुअली बहुत काम की चीज़ें होती है. तो आपको जो लगता है कि ये अच्छे रिजल्ट नहीं है, ये कहाँ जाएंगे पेपर में, तो वो जाएंगे डिस्कशन सेक्शन में. तो डिस्कशन में बड़ी बड़ी बातें करो कि अब तो मैंने ये छोटा क्लास बना लिया है, 10 सालों बाद मैं मेटाक्वेस्ट जैसा कुछ बड़ा क्लास भी बना ही लूँगा. तो ये सब चीज़ें जाएंगी डिस्कशन सेक्शन में. अगेन आपको नहीं लिखना आता डिस्कशन सेक्शन, तो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. आप रैंडमली कुछ वर्ड्स लिख दो और वो उसके डिस्कशन सेक्शन बना देगा. और उसके लिए आपका प्रीवियस पूरा पेपर अपलोडेड होना ज़रूरी है, सो दैट इट गेट द कॉन्टेक्स्ट. नहीं तो कुछ भी रबिश लिख के दे देगा वो. तो आपका पूरा पेपर का पीडीएफ पहले अपलोड करो, उसको समझने दो टॉपिक क्या है, किस बारे में डिस्कशन करना है. देन यू पुट योर आइडियाज रैंडमली एंड राइट आउट प्रॉपर डिस्कशन सेक्शन. सी चैट जीपीटी इज टूल, डोंट ट्राई टू बाईपास इट. ह्यूमन इंटेलिजेंस समझ के मत काम करो उसके साथ. नेक्स्ट इज confusion matrix and its corresponding tables. तो ये भी kind of a results ही है. I don't know what kind of mini project results you can produce, पर इस तरह से फैंसी ग्राफ, कलरफुल ग्राफ, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें डालनी होती है, सिमेट्रिक और एकदम खूबसूरत. अब यही चीज़ें हम प्रेजेंटेशन में भी यूज़ करेंगे. तो प्रेजेंटेशन बनाना है मतलब कुछ नहीं, इस पेपर में जितने भी फिगर है एक एक स्लाइड में डाल देने, दैट विल बी योर प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम 1 लाइन अलाउड है लिखना, और टाइटल जो भी स्लाइड का है वो, और उसके भी फॉन्ट साइज फिक्स है 24 टाइम्स न्यू रोमन ब्लैक कलर टेक्स्ट के लिए, और टाइटल के लिए टाइम्स न्यू रोमन सेम 32 फॉन्ट साइज लेना है, और बैकग्राउंड में कोई लाइट सा कलर दे दो. सो मैं टेम्पलेट यूज़ करो जो वाइस प्रिंसिपल सर ने पिछले या पिछले से पिछले हफ्ते भेजी है, और नई टेम्पलेट ही यूज़ करनी है आपको.
नेक्स्ट इज कंक्लूजन्स। अब कंक्लूजन्स क्या होगा कि ये सब करने से क्या अचीव हुआ। अब एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी ऑफ योर पेपर, 5 line समरी विच वी जनरली राइट इन अ नेचर समरी पैराग्राफ फॉर्मेट। कंक्लूजन इज व्हाट यू infer और व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर वर्क। सो ये डिस्कशन से कैसे डिफरेंट हुआ? कंक्लूजन में बांग्लादेश जीत गया, ये रिजल्ट भी था। बांग्लादेश क्यों जीता, कैसे जीता, ये डिस्कशन में था। कंक्लूड क्या करेंगे? बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, ठीक है। या अभी तुम एग्जैक्टली पर्सनली मत लो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। कुंफू पांडा मोटा है, कंक्लूजन, बराबर है। So that is how you conclude the things. It's your interpretation, what you understand from the research and discussion. Some of the things may overlap with abstract, some of the things may overlap with discussions, some of the things may overlap with the results, ठीक है। नहीं लिखना आता तो क्या करेंगे? जितना पेपर बना है अपलोड कर दो, चैट जीपीटी को बोलो इसके लिए कंक्लूजन लिख के दे दो, फिर बोले कंक्लूजन पढ़ के तुम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लो, फिर चैट जीपीटी को बोलो अब इसका ग्रामर ठीक करके दे दो, ठीक है। तो यूज दिस टूल एंड कंप्लीट द रिमेनिंग सेक्शन। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशंस। अब ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हम एक दूसरे के साथ नहीं झगड़ते, वो लिखना है। फिर हमने किसी एनिमल को प्रोजेक्ट बनाते वक्त हर्ट नहीं किया, ये लिखना है। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ डिक्लेरेशंस रहता है। हमें कोई फंडिंग नहीं मिली या फंडिंग मिली है तो फंडिंग मिली, हमने लोगों से इन्फॉर्म कंसेंट लेके उनको अपना चश्मा पहनाया, जो भी है ये स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स है। और ये किसी भी आपके सीनियर के पब्लिकेशंस में देख लो, थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में जो गए होंगे, आप उनके पेपर खोल लो, उसमें आपको स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन मिल जाएंगे विथ अ बायोग्राफी। एंड देन कम्स द रेफरेंसेस। सो रेफरेंसेस में आपको आई थिंक मैंने सिखाया नहीं है, आई विल जस्ट शो यू, आई डोंट नो वेदर आई रिमेंबर, जस्ट डू इट अगेन। यू टेल मी अगर आपने ये सीखा है तो। गूगल स्कॉलर करके एक वेबसाइट है, तो आपको गूगल स्कॉलर पे जाके आपका टॉपिक ढूंढना है। अल्ट्रासोनिक ग्लास फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ ले रहा हूँ। तो ये अल्ट्रासोनिक माइक्रोस्कोपी सिलिका ग्लास आया, ये रिलेवेंट साइटेशन था, तो आई विल क्लिक ऑन साइट, देन आई क्लिक ऑन बिबटेक्स, then I copy this stuff, ठीक है। where I will paste it, there is a bib file into your overleaf draft, so go to the overleaf draft, look for a bib file। अभी कलेक्शन करते वक्त आप उसको नोटपैड में भी रख सकते हो और वो रैंडम ऑर्डर में भी रख सकते हो। आई डोंट नो, ये नोटपैड बोला तो कुछ और ही खुल गया। Anyways, let me just check नोटपैड, ठीक है। इस तरह से एक एंटर दबाओ, नेक्स्ट पेपर है उसको साइड करो। और जब इसको पेपर में डालना है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, लेट्स से दिस इज पांडा, वट, ये मेरा स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप है, यहाँ मुझे साइटेशन देना है पांडा के बारे में, तो आई विल राइट दिस एज स्लैश साइट, CIT, कर्ली ब्रैकेट में। अब कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखना है? जो ये पहला लाइन होता है आर्टिकल के बाद, ये वाला, ये पूरा लेना है यहाँ तक, कॉमा तक, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब जब ये कंपाइल होगा लेटेक्स, तो ये जो भी अप्रोप्रिएट नंबरिंग है खुद से ले लेगा। तो वो जो आपको 1 दिख रहा था और नीचे 1 में पूरा इंफॉर्मेशन आ रहा था, ये अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको साइटेशन करके ये पूरा पेपर कंप्लीट कर देना है। आई डोंट नो हाउ मेनी वीक्स यू हैव, बट 18 को कुछ सबमिशन है, इसमें से शायद डिस्कशन और रिजल्ट का। अब ये पूरा पेपर कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट चीज़ आपको PPT बना के सबमिट करनी है, प्रेजेंटेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट। सो बेसिकली एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने अगर प्रोजेक्ट नहीं चला तो वो प्रेजेंटेशन ही आपका सेवियर होता है। सो आपके प्रोजेक्ट को कैसे बनाएं, जो भी फिगर्स इस पेपर में गए हैं उसको 1 फिगर एट 1 स्लाइड डाल के प्रेजेंटेशन रेडी कर देना, और उसका जो कैप्शन है वही वो 1 लाइन उस कैप्शन की चली जाएगी। एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट इट। हाउ यू विल प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ एट द सेम टाइम? देयर इज अ टूल कॉल्ड पावर पॉइंट, ठीक है। सो यू ओपन द पावर पॉइंट, यू ओपन सम प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये GIF डालते हैं तो ऐसे मूविंग इमेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी
इस पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैंने पहले स्लाइड रेडी कर ली। ये एक सैम्पल स्लाइड शो है कि कैसे पिक्चर होता है, एक कैप्शन होता है और एक लाइन होता है। तो इस तरह से ही पूरा प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। ठीक है। ये खराब तरीका है लिखने का। ये जो है इतना सारा लिख दिया एक स्लाइड में, ये खराब तरीका है। ठीक है। नॉट अ गुड वे टू प्रेजेंट। अगेन दिस स्लाइड इज नॉट वेरी गुड, बट दिस इज ओके। ठीक है। So minimal text, this is also okay. And once you have this ready, what you have to do is go to the record button. ठीक है। एंड फ्रॉम बिगिनिंग कर दो और हर स्लाइड पे बोलते जाओ। अब याद रखो, रिकॉर्डिंग में बैक जाना अलाउड नहीं है। सो वंस यू आर रिकॉर्डिंग, स्लाइड के बीच में जब तुम स्लाइड चेंज करोगे, मेक श्योर दैट you take 1 second pause. Then you keep on recording. Once you finish the entire recording, go to file. I guess export may there is an option called create a video, and then you make a full HD video of that and then export. Okay, you can also add some background music and all, but preferably this is how you should do it. Now, there are some filmmaking students who will help you with the audio editing and further noise removal with this video. But that is one of your submissions video, and then you have to make a professional advertisement. So one of you, at least one of the team members should able to face the camera. One of the team members should act as a cameraman, and one can be narrator, or there could be a two role play, and you have to sell your product. ठीक है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। जब भी एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। तो यू सेल योर प्रोडक्ट लाइक एनीथिंग। जो भी बुद्धू सी चीज़ तुमने बनाई है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट उसके 10 गुना प्राइस पे उसको बेचो। तो ये अगर बनाए 200 का, बिकेगा 2000 का। क्लियर। सो दैट इज अनदर सबमिशन। अब इसमें मुझे कुछ आई डोंट थिंक इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। लाइटिंग हमेशा फेस पे होनी चाहिए। बैकग्राउंड में ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए। कैमरा नज़दीक रखो, माइक्रोफोन नज़दीक रखो, अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करो, हाईएस्ट एफपीएस और हाईएस्ट रिजोल्यूशन के साथ रिकॉर्ड करो। ठीक है। और आईफोन हो जाने से कोई अच्छा कैमरा नहीं बनता, अच्छा वीडियो नहीं आता। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है। किसी के पास रिंग लाइट है, किसी को मेकअप करना है, आई डोंट माइंड, पुट योर बेस्ट। ठीक है। लेकिन कोई एआई जनरेटेड इमेज से मत बुलवाना। आई वांट यू टू बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ठीक है। So with that I will stop recording, and you please complete all the tasks. Next week there will be a committee, so we will ask best projects to present in front of the committee.